तो मैं एक बार फिर से बच्चे आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक। वी आर मूविंग टू राइट सर्कुलर कोन इन दिस सेक्शन। ओके, जब आप राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं तो अभी अभी हमने डिफाइन किया कि हाउ वी विल गेट द एरिया। इसमें हमने डिफाइन किया कि दिस पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स, this one is called center, and this L is called slant height, H height, and R is radius, and they are connected with the concept of Pythagoras theorem, L square is equal to H square plus R square। और फिर हमने इस डायग्राम के थ्रू ये डिफाइन किया कि how we will find out the area of curved surface area, which is pi RL. After pi RL, we are using the area of circular base, which is pi r square, that becomes a total surface area। और इसको हमने एक और डायग्राम के साथ चेक किया। Now this yellow portion is a curved surface area which we are defining pi RL, and this green portion when added into curved surface area तो it becomes a total surface area। पहले तो ये बता दीजिए किसी को फार्मूले में कोई डाउट तो नहीं? No, sir. Okay, so keep one thing in mind here, H is the height, R is the radius, and L is the Slant height. slant height। तो ये हम इसमें क्या करने चले हैं? डिफाइन करने चले हैं। और यू मीन टू से कि हम इस से आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे व्हेन वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गॉट माय पॉइंट? अब आ जाइए बच्चे आपकी एक्सरसाइज में। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। बेसिकली इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, नथिंग न्यू इन इट, वी आर जस्ट यूजिंग द फार्मूला एंड getting our facts right। तो प्लीज 13.3 एक्सरसाइज में आ जाए। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। See it here. The first question is, here is a right circular cone. He said diameter of the base, देखिए what is given to you? Diameter means 10.5 centimeter। okay, and its slant height is 10, और उसकी slant height क्या है बच्चे? 10 centimeter। Find the curved surface area। अब हमने उसका क्या फाइंड आउट करना? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। बच्चे बड़ी सिंपल सी चीज है, स्लांट हाइट मींस L which is equal to 10 centimeter, radius 10.5 by 2 centimeter। और आप सबको पता है फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया व्हाट which formula we can use? So pi RL. Yes, curved surface area we will use the concept of pi RL, where pi can be defined as 22 by 7, R is given to us 10.5 divided by 2, and what is L? We can also take it by 3.14. What? Yes, you can, ठीक है, but if you solve it बच्चे, ये देखिए आपके पास ये भी क्या आएगा? 5.25 आ सकता है। ओके, तो now you can solve it, you can also take 3.14, ठीक है, So 165. we will get 165 centimeter square। This is the curved surface area। okay, now come on to second question in this same scenario। क्वेश्चन बड़े सिंपल है बच्चे, हम उनको बड़े सिंपल तरीके से क्या करते जाएं? मूव करते जाएं। now see question number 2। in question number 2 he said, मैं हमेशा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, so that you will get the exact picture of that।
he said find the total surface area of cone if its slant height is 21 and diameter of the base is 24. तो diameter of the base को हम क्या लिख सकते हैं? 12 centimeter. 12 Check कीजिए. centimeter. This is O, this is A, and this is B. अब what is given to you? Its slant height, which is equal to L, its radius 12 centimeter, and its height. Height हमें बच्चे पहले क्या करनी है? Find out करनी है. Because when we are moving to find out the total surface area, its formula is pi r. नहीं, height की हमें इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे. Pi r L plus r. So we will simply write it as pi 22 by 7, and for r 12 centimeter, and for L plus r this is equal to 33. तो क्वेश्चन थोड़ा सा if you will see that किस में चला जाएगा? डेसिमल्स में चला Decimal. जाएगा. ठीक है, तो you have to multiply 22 with 12, then multiply with 33, and then divide with 7. तो you will get some कांस्टेंट. अच्छा, इसने एक चीज और भी कही बच्चे. सपोज दैट वो इस क्वेश्चन में आपको ये कह देता, ठीक है, बिकॉज इसमें तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, हाइट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही, बट इफ यू आस्क यू व्हाट इज द हाइट, तो हाउ वी विल फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस को? So by Pythagoras theorem. Yes, by Pythagoras theorem. So we will suppose this as h, and you know that in Pythagoras theorem, so we can simply write L square is equal to h square plus 12 square. Now from this concept we can find out the value of h. इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा रख. ओके, नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हम सिंपल फार्मूलाज की एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं मैं ले रहा. ओके, एंड दैट व्हाट इज दैट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. देखो, नाउ इट इज गिवन टू यू that curved surface area is equal to 308 centimeter square, and its slant height is 14 centimeter. Find the, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, find the radius of the base and total surface area of the cone. क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? टोटल सरफेस एरिया भी कौन का क्या करना, फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद, अच्छा हमने रेडियस भी फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया भी करना है. तो नेचुरली वी कैन स्टार्ट विद दिस वन, पाई आर एल इज इक्वल टू 308. अच्छा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? Yes, yes, sir. पाई आर एल गिवन था. तो नाउ इन सिंपली in this case r can be written as 308 divided by pi l. So we can write it as 308 pi 22 by 7, and l is equal to 14. Just cancel it. And हम इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं बच्चे. 44, आई थिंक ये 7 बन रहा है. Yes, sir. 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस. अब बच्चे आपको आगे जाना है क्वेश्चन में कि हम इस क्वेश्चन में किस तरह से मूव आउट करेंगे. अब उसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? टोटल सरफेस एरिया. नाउ फॉर टोटल सरफेस एरिया वी नो दैट फार्मूला इज पाई आर प्लस एल प्लस आर. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 22 by 7, r is equal to 7, l is equal to 14, r is equal to 7,
सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। 22 प्लस 21 and So after 462. solving 462 centimeter square. This is the area. Got my point? तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, विच वी आर डिफाइनिंग हेयर। ठीक है, कि हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या क्या वैल्यूज हैं, या हम इन फंक्शंस की किन किन वैल्यूज को क्या करते हैं, डिफाइन। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बिल्कुल इसी तरह से हम आगे मूव करेंगे। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, धीरे धीरे हम थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 and you will see what is given to you in question number 4, the conical tent। बच्चे आपने सबने देखा होगा a tent in the form of cone। ठीक, 10 मीटर हाई, ये उसकी हाइट है, and the radius of the base is 24। तो radius is 24, height is 10 मीटर। 10 meters. हाँ, 100. और radius That is is 1000. 24 मीटर्स। नहीं, मीटर्स है बच्चे सारा कुछ। अब उसने पूछा फाइंड द स्लांट हाइट। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग आता है क्वेश्चन। दैट मींस हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एल। एंड फॉर वैल्यू ऑफ एल यू नो दैट हाउ वी विल मूव, दिस इज अ व्हाट ऑफ Right triangle. right triangle, means to say L can be written as h square plus r square का अंडर रूट। तो L is equal to h square means 100 and r square means 576 under root, which is equal to 676, and this is the square root of 26। So I can simply say L is equal to 26 centimeter। अब आ जाइए, what is given to you? He said cost of the canvas required to make the tent if 1 meter square of tent cost you rupees 70। ओके, तो बच्चे हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कैनवस टू मेक दिस टेंट। और कैनवस हमें कौन से एरिया से पता चलेगा बच्चे, टोटल सरफेस एरिया या सर कर्व्ड सरफेस एरिया। Surface area. Surface area. वेरी गुड। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर एंड एल। और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हम और करेंगे, r इज इक्वल टू 24 एंड l इज इक्वल टू 26। ये बच्चे हमारे पास मीटर स्क्वायर हो। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज ही इज नॉट आस्किंग अस अबाउट द एरिया, ही इज आस्किंग अस अबाउट कॉस्ट। तो देखिए इतने की कॉस्ट कितनी बनेगी, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद होम 70। ओके, और जब आप इसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इट 10। और ये आ गया बच्चे, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए दिस इनटू दिस बिकॉज ये मीटर्स में है, तो यू विल गेट द अमाउंट एज 220 इंटू 24 इंटू 26। तो आपके पास आई थिंक ये क्या हो जाएगी 1,37,200 एंड क्या आ जाएगी 80 is the cost for the canvas which we are purchasing for this
whole scenario. Any doubt? No, sir. तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है बच्चे, वैल्यू हो सकती है. Come on to next phase. Question number 5. We are just applying the formulas. कोई ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर रहे बच्चे. हम जो आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, सॉरी अपने इस फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. दिस इज द 5th सेशन ऑन आवर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेपलिन. ये आपके पास एक कोई ट्रेपलिन है बच्चे और ये 3 मीटर वाइड है. ओके, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ. तो हमें इसकी लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. एंड वी विल यूज दिस टू मेक अ कोनिकल टेंट. हमने एक कोनिकल टेंट बनाना है इससे, ठीक. हुज हाइट इज, उस कोनिकल टेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8. एंड हुज रेडियस इज 6. Assume that extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. कहता भी जो कटिंग वगैरह या वेस्ट होगा वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होगा. अगर हम इसको देखें तो वो बाद में देखा जाएगा कि हाउ वी विल मैनेज इट. ओके, अच्छा अब जो हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है बच्चे, यू विल सी कि height is given to you, radius is given to you. So our first requirement is to find out the slant height. अच्छा आप मेरे को इसमें जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप सब ने रीड किया हुआ है. 10. 10 centimeter. बड़े सिंपल से 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. अच्छा अब आइए देखिए, when you are making the tent, that means you will require the trampoline equal to its curved surface area. और वो आपको यहां से मिल रही है कि ये जैसे कपड़े का आपने बनाना हो तो the cloth will be of rectangular shape, और आपको दिया गया कि उसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, बट आपने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे हम इस रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. तो इट्स रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपली देखिए 3L लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और यही जो आपका ट्रेपोलिन है वो इस कोन को बनाने में यूज किया जा रहा है. तो दैट मींस जितना कोन का अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही आना चाहिए. हाँ उसने लिखा था कि ये 20 सेंटीमीटर इसमें क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा लग जाएगी. 20 सेंटीमीटर का मतलब समझ गए ना बच्चे, 0.2 मीटर. तो अब हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करो, एंड दैट कैन बी डिफाइंड एज 22/7. चेक कर रहे हो ना. अच्छा एक चीज और देखिएगा आप इस क्वेश्चन में, when you utilize this, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है use pi as 3.14. तो हम 3.14 यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड दिस इज 10 + 6. समझ गए. तो दिस इज द वे वी कैन सिंप्लीफाई इट. 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, सर जब वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा ना. बिल्कुल. ओ वेरी गुड,
ये हम थोड़ी सी गलती करने जा रहे हैं। तो ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, तो हेयर वी विल यूज द फार्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। बट बच्चे मैं इन दोनों को ना इक्वल नहीं करूंगा अभी, उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं। पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, r इज इक्वल टू 6 एंड l इज इक्वल टू 10। तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, इट विल बी 188.4। चेक कीजिएगा बच्चे, कितना 188.4। और अभी अभी हमने ये कहा था कि इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। देखो इसके दो ऑप्शन किए जा सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो फिर आप सीधा ही लिख दोगे 3l इज इक्वल टू 188.4। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 188.4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अगर आप ये कंसिडर करते हो कि ये 0.2 मीटर जो वेस्ट हुआ है, पहले मैं इस एरिया में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज देखिएगा, जो इसमें लिखा हुआ है 0.2 मीटर वाला पॉइंट, assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin, वो तो लेंथ है बच्चे कि जितनी अपने पास लेंथ आएगी। तो अब आप चेक कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको 62 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। ओके, और आपको पता था 0.2 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ उसने हमें दी है, भी आप ले सकते हैं। तो मैं 62.8 में 0.2 मीटर और ऐड कर दूंगा, तो इसका मतलब आपको उसकी कितनी लेंथ चाहिए होगी 63 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, और आई कैन रिपीट दैट क्वेश्चंस। एक हमसे जो मिस्टेक हो रही थी बच्चे, वी विल टेक द कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने वहां टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, तो चेक इट आउट, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, डू यू गेट दिस क्वेश्चन और anything else which you want? हाँ जी बताइए, हो जाएगा क्वेश्चन? Sir, please repeat this. टोटल क्वेश्चन, चलिए तो वी विल चेक इट। बच्चे हमें ये दिया गया था कि आप अगर इस तरह की एक क्लोथ टाइप, आपको एक लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक क्लोथ की कह लीजिए या ट्रेपलिन की, जिससे आपने कोनिकल टेंट बनाना है। तो व्हाट इज गिवन टू यू, उसने कहा कि वो जो आप क्लोथ लेंगे वो 3 मीटर वाइड होगा, बट आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब मैंने सपोज कर लिया कि लेट द लेंथ बी एल। तो इसका मतलब जो हम ये क्लोथ ले रहे हैं, इसका टोटल एरिया कितना चाहिए 3L। ओके, अब क्या किया गया, बाई दैट क्लोथ एक कोनिकल टेंट बना दिया गया, जिसकी हमें डिमेंशंस कुछ दी हुई थी एंड कुछ हमने फाइंड आउट कर। तो दैट मीन्स क्या होगा कि अगर वो इसी क्लोथ से बना है, तो इस क्लोथ का एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हमने इनको, इसका एरिया 3L और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वी पुट देम इक्वल। और इक्वल पुट अप करने के बाद बचे हमें किसकी वैल्यू मिली, लेंथ की वैल्यू मिली 62.8 मीटर। एवरीथिंग इज इन इट। बट उसने कहा था कि आप एक और एक्स्ट्रा लेंथ लेंगे 200 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ठीक, जो कटिंग में या मार्जिन में खत्म हो जाएगी। तो उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ बनती थी 0.2 मीटर। तो जो मेरे पास आफ्टर कैलकुलेशन आया, मैंने उसमें 0.2 मीटर और जोड़ दिया। तो इसका मतलब हमें कितनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, 63 मीटर लेंथ की जरूरत पड़ेगी फॉर दैट। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6।
And question number 6 is the slant height and the base diameter of a conical tongue are 25 meter and 40 meter. देखिए क्या दिया हुआ है, एक आपको कोई conical formation टर्म दी हुई है, and he said the slant height and the base diameter. Slant height is 25 meter and base diameter is 14, so that we can write it as 7 centimeter. Okay. Find the cost of whitewashing at curved surface area. देखिए फिर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि we want to whitewash अच्छा चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताइए, अगर हमने उसको येलो कलर करना हुआ तो देन वी से व्हाइट वॉश और समथिंग एल्स? अभी तो मैंने येलो कलर से उसको बना दिया, बट अगर हमें इसको व्हाइट वॉश ही करना, सॉरी येलो कलर करना हो, तो देन व्हाट वी कैन से? सर व्हाइट वॉश ही कहेंगे। पक्का? यस सर। एनीबॉडी एल्स? कोई आंसर नहीं? चलिए तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, व्हाइट वॉश करना है, एंड व्हाइट वॉश की हमारे पास उसने कॉस्ट दी हुई है ₹210 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखा हो बच्चे? पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया which is known as pi r l. इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा बच्चे, पाई इज इक्वल टू 22/7, r is equal to 7 and l is equal to 25. So we will cancel it out and got 550 centimeter square. Now the question comes to us about the cost. Okay. अच्छा एक आंसर आ गया कि we call it yellow washing. चलिए ठीक है, नहीं व्हाइट वॉश ही कहेंगे बच्चे, पेंटिंग भी हो सकता है, पेंट करना बोल सकते हैं कि वी वांट टू पेंट इट फॉर डिफरेंट कलर। तो अब क्वेश्चन क्या था, 210 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे देखिएगा बच्चे, व्हाट आई एम सेइंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विल कॉस्ट यू 210 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 upon 100. Got it? And next 550 centimeter square is equal to 210 divided by 100 multiply 550. 550 and इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए बच्चे। When you solve it, so you will get, it will be of cost So 1155. 1155 rupees for that particular paint on a conical type of shape. Come on to next one. ये क्वेश्चन अच्छे थे बच्चे, इजी भी हैं। ओके, जस्ट यू आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर दैट कॉन्सेप्ट। अब जैसे देखिए नेक्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, अ जोकर कैप। देखिए आपको पता ही है जोकर कैप भी इज ऑफ सेम टाइप होती है, ठीक। अ जोकर कैप
is in the form of height. A joker cap is form of a right circular cone with base radius 7 centimeter and height is 24. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. तो बच्चे हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कोई ऐसी शीट चाहिए, उसका एरिया क्या होगा टू मेक 10 सच टाइप ऑफ कैप। तो बड़ा सिंपल सा है कि टू मेक अ जोकर कैप यू नीड अ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया यू रिक्वायर्ड अ स्लांट हाइट। तो इसमें बच्चे आपको क्या नहीं गिवन, slant height given. So first of all, we will move to the concept of slant height. Let it be L, and by Pythagoras theorem, L square is equal to 25. 24 square plus 7 square. बिल्कुल आपने बड़ी सही से पकड़ा। तो it can be written as 576 plus 49, which is equal to 625. तो L की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है बच्चे? क्या लिखा जा सकता है? 25 सेंटीमीटर। तो दिस L कैन बी रिटन एज 25। और अब आ जाइए कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई इज इक्वल टू 22/7, R is equal to 7 and L is equal to 25। कैंसिल कर दीजिए। ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया बच्चे, हो गया ना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यू रिक्वायर्ड हाउ मेनी कैप्स? 10 caps. 10 caps. तो for 10 caps we will multiply this area with 10. तो we need 5500 centimeter square area. Okay, let us start with one more question. और आज हमने पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर, because questions are little bit easy. He said a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. मैंने जैसे आपको दिखाया था कि आपके पास एक आजकल ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए ऐसे हॉलो कोन्स लिखे जाते हैं, ठीक? और ये कितने हॉलो कोन्स हैं? 50। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ये बने किससे हैं? रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर। ईच कोन का बेस डायमीटर है 40, तो रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। देखिए उसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बड़े ध्यान से देखें। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है बच्चे? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो हम इन क्वेश्चंस में करते हैं बच्चे, वो देख लीजिएगा क्या। दिस इज गिवन टू यू इन मीटर्स बट दिस इज गिवन टू यू इन सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? h इज इक्वल टू 1 मीटर एंड r 20 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इट बिकम 0.2। अब देखिए व्हेन वी वांट टू पेंट द आउटर सरफेस दैट मींस वी रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया वी नीड व्हाट? पाई आर एंड एल। And here will the same reference जो आपने पहले किया था, in this right circular triangle, right triangle, we will find the value of L. यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, डेसिमल्स में आ गया तो देखिए कैसे चलेगा। L इज इक्वल बेस स्क्वायर 1 एंड 0.2 का स्क्वायर। वी विल सॉल्व इट, चेक कीजिए। तो वी विल राइट इट एज 1 और इसका क्या आ जाएगा? 0.4 विच इज इक्वल टू
1.04। और एक चीज आप देखिए, आपके क्वेश्चन में हिंट में लिखा हुआ है कि 1.04 का इसने स्क्वायर रूट भी आपकी इजीनेस के लिए दे दिया कि कितना होता है, 1.02 सेंटीमीटर होता है। तो here we can start. Pi is given to us 3.14, r is equal to 0.2 meter, and what is L? 1.02। बच्चे अभी यहाँ पे ना इजी मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे चलेगा 3.14 इंटू नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू आएगी 0.204, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर स्क्वायर। ये एक कोन का एरिया है और हमें कितने चाहिए ऐसे, टोटल कोन 50। कितने चाहिए 50। तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट आई कैन नॉट सॉल्व इट। वो देख लीजिएगा मैं सॉल्व क्यों नहीं करूंगा, दिस बिकम्स द एरिया। क्यों नहीं करूंगा बच्चे, बिकॉज उसने हमसे कॉस्ट पूछी है, एरिया नहीं पूछा। तो नाउ वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट। ठीक, तो कॉस्ट कितनी थी 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हेयर वी कैन मल्टीप्लाई 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 विद होम 12। 12। तो ये बच्चे आपके पास इन कोन्स को क्या करने की आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। पेंट करने की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, सॉल्वेशन के लिए बच्चे आप ये भी कर सकते हैं, 3.14 को क्या लिख दीजिए ओवर 100, इसको क्या लिख दीजिए ओवर 1000। तो ये डेसिमल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो 50 इंटू ये क्या होगा 2 इंटू दैट क्या हो गया 6। तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना एंड यू विल गेट द कॉस्ट। और मेरे पास जो कॉस्ट लिखी गई है वो लिखी गई है 384 पॉइंट समथिंग is the cost of painting to these cones। और ये टोटल कितने कोन्स थे बच्चे, 50 कोन्स थे 50 cones। इस टाइप के। ठीक, चलिए तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट कोन, जिसमें हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड क्या फाइंड आउट कर रहे थे, टोटल total सरफेस एरिया। surface area. And next we will move to the volume of this cone.